Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atayil Maza. In this video we will see matrices, that is basic of matrices. So very first definition of array in mathematics. An arrangement of objects, pictures or numbers in rows and columns is called arrays. Now next definition of matrix. An rectangular arrangements of number in rows and columns or an arrangement of mn numbers, that is m rows and n columns enclosed in simple bracket or rectangular bracket is called matrix of order m by n. Matrix is denoted or represented by capital letters in English alphabets while its elements are denoted by small letters. Now, numbers which form a matrix are called elements or members. Now, of the student in matrix A, elements A11, A12, A13, etc. are called elements. Also, every element of the matrix is represented by two suffixes, that is first number for rows and second number for columns. Now next, diagonal and non-diagonal elements. A11, A22, A33, that is I equals to J, are called diagonal elements, and A12, A13, etc., that is I is not equal to J, are called non-diagonal elements. Now student, next we have the types of matrices. So very first, row matrix. A matrix having only one row is called row matrix. Number two, column matrix. A matrix having only one column is called column matrix. Next, rectangular matrix. A matrix in which the number of rows are not equal to number of columns. Now next, square matrix. A square matrix in which number of rows is equal to number of columns. Next, diagonal matrix. A square matrix in which each non-diagonal element is 0 is called diagonal matrix. Next, scalar matrix. A square matrix in which non-diagonal elements is 0 and all the diagonal elements are equal is called scalar matrix. Now next, unit matrix. A square matrix in which each non-diagonal elements is 0 and all diagonal elements are equal to 1, that is unity, is called unit matrix. Now next, upper triangular matrix. A square matrix in which all the elements below the diagonal are equal to 0 is called upper triangular matrix. Lower triangular matrix. A square matrix in which all the elements above the diagonal elements are equal to 0 is called lower triangular matrix. So let's start student basic of matrices, but before that don't forget to like and subscribe my channel. So here we have the notation of a matrix. What is matrix exactly? Matrix means what? So here we have the complete notation of matrix. If you observe that capital A is equal to, what is capital A? Here capital A indicates that it is a matrix, and here we have a rectangular array of numbers, that is rectangular arrangements of number is called matrix. स्लाइड पे बेटा मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ रे, यहाँ से अरे से स्टार्ट किया है, डेफिनेशन ऑफ अरे, देन इसके बाद डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स लिए है, देन इसके बाद में इसके टाइप्स लिए है. सो आज के वीडियो में बेटा आपको डेफिनेशन करना है मैट्रिक्स का और साथ ही साथ कुछ टाइप्स करने हैं. सो कंटिन्यूशन में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. इसके बाद में और टाइप्स है, इतने ही टाइप्स नहीं और भी टाइप्स है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. वेरी फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स. Matrix is nothing but the rectangular array of numbers in rows and columns. So here you observe that here the numbers A11, A12 up to AN, and the last row AM1, AM2 up to AMNN. That is, here in this matrix the number of rows is M and number of column is N. इसको बोला जाएगा बेटा मैट्रिक्स. ठीक है, मैंने आपको साथ में ये भी बताया कि मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं और जो नंबर्स होते हैं बेटा इनको बोला जाता है एलिमेंट्स. है ना, ये सारे बेसिक टर्म आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, एलिमेंट्स और मेंबर्स. सो हमारे प्रैक्टिस में बेटा इसको एलिमेंट्स ही बोला जाता है. मतलब यहाँ जो आपको ये जो दिख रहे हैं
ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये जो क्वांटिटीज़ दिख रही है बेटा, इनको बोला जाएगा एलिमेंट्स। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि बेटा किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर m/n, मतलब ये डिपेंड करता है बेटा, आपका ऑर्डर डिपेंड करता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स पे, आप पे डिपेंड करता है। जितने ना रोज रहेंगे और जितने कॉलम्स रहेंगे वही मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दूँ, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स लिया है मैंने, 1 2 3 4, ये मेरा एक मैट्रिक्स है, और मैं आपको पूछूँ इसका ऑर्डर क्या है। सो आप क्या करोगे बेटे, जब भी आप ऑर्डर फाइंड करोगे किसी भी मैट्रिक्स का, यू विल काउंट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, नंबर ऑफ रोज कॉलम करोगे। सो नंबर ऑफ रोज क्या है देख लो, यहाँ 1 and 2, सो यहाँ लिख लोगे बेटा 2। नाउ नेक्स्ट नंबर ऑफ कॉलम्स देख लोगे कितने, सो बेटा क्लियरली दिख रहा है यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो भी कितने दिख रहे हैं मुझे, 2 दिख रहे हैं, 1 3 2 4, यहाँ आ जाएगा 2। ओके, सो ये ऑर्डर देखने का मेथड है, ये तरीका है बेटा ऑर्डर कैसे देखा जाता है। पहले नंबर ऑफ रोज गिने हैं आपको, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करने हैं। जैसे मैंने रोज काउंट कर लिए, देन इसके बाद में कॉलम्स। ओके, सो ये है बेटा मैट्रिक्स का नोटेशन, और ये इसका शॉर्ट फॉर्म, ये जो लिखा है आपको बोर्ड पे जो दिख रहा है बेटा, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है AIJ। AIJ, यहाँ जो आई होता है बेटा, ये हमेशा याद रखो, ये नंबर ऑफ रोज के लिए यूज़ होता है, और जो जे होता है ये यूज़ करते हो आप नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, फिर यहाँ सबसे काम की चीज़ है बेटा, किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को टू सफिक्स से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। टू सफिक्सेस, वाई टू सफिक्सेस बेटा, क्योंकि रोज और कॉलम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो दोनों सफिक्स इंडिकेट करेंगे आपके रोज। फर्स्ट वाला आपका रो बताएगा और सेकंड वाला आपका कॉलम बताएगा। अब यहाँ ऑब्जर्व करो A11, अब एग्जैक्टली अगर इसका मीनिंग निकाले आप A11 का, सो A11 का मीनिंग ये आ रहा है बेटा, ये आपके एलिमेंट की पोजीशन बता रहा है आपको। एलिमेंट की पोजीशन मतलब आपका एलिमेंट कहाँ लाई करेगा मैट्रिक्स में। जैसे यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है A11, A11 का मतलब है माई एलिमेंट लाई इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ऐसे पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा इसको, एलिमेंट A लाई इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करेगा। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 2 का मीनिंग क्या है, A12, सो आप बोलोगे सर A लाई और दिस एलिमेंट लाई इन मैट्रिक्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। ये एलिमेंट कहाँ लाई करेगा बेटा, इसकी पोजीशन बता रहा है, इसकी पोजीशन ये बता रहा है आपको, फर्स्ट रो पे है और सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सो ये जो काम करता है सफिक्स, ये सफिक्सेस जो दिख रहे हैं आपको, ये आपको पोजीशन इंडिकेट करता है किसी भी एलिमेंट के। मैट्रिक्स में अगर आपको एलिमेंट की पोजीशन आइडेंटिफाई करना है, सो आपको ये सफिक्सेस पे ध्यान देना पड़ेगा। सफिक्सेस आपको बताएगा आपका एलिमेंट कहाँ लाई करेगा। मैं आपको अगर पूछूँ A33, तो आप बता दोगे सर ये एलिमेंट लाई करेगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके बच्चों, सो ये है आपके सफिक्सेस का मीनिंग। नेक्स्ट मैंने आपको कुछ टाइप्स बताए हैं मैट्रिसेस के, तो उसमें कुछ 11 का पोर्शन भी है बेटा, बेसिक है 11 का पोर्शन है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको रो मैट्रिक्स बताया, मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, 7 बच्चों को आना चाहिए बेटा, एक ही रो रहेगा, ऐसा मैट्रिक्स रहेगा। ऐसे मैट्रिक्स ले लो एक containing only 1 row, that is 1 2 3, बेस्ट एग्जाम्पल, containing only 1 row, इसको बोला जाएगा बेटा रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स containing only 1 कॉलम, एक ही कॉलम रहेगा बेटा, एक ही कॉलम रहेगा, मतलब अगेन 1 2 3, ये रो मैट्रिक्स होता है बेटा इस टाइप का, ये होता है कॉलम मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद मैंने आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताया है। सो रेक्टेंगुलर डेफिनेशन का मैट्रिक्स का डेफिनेशन बहुत सिंपल है बेटा, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब यहाँ ऑर्डर जो रहेगा बेटा ये सेम नहीं रहेगा, ऑर्डर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये 11th का है।
ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मेन हमारा जो मैट्रिक्स है बेटा, सबसे काम का मैट्रिक्स, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बहुत आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? तो बहुत सिंपल डेफिनेशन लिया बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर में क्या बोला है आपने? नॉट इक्वल टू, और स्क्वायर में बोल रहे हो आप इक्वल टू। सो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा याद रखो बेटा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने रोज रहेंगे उतने ही कॉलम्स रहेंगे, उसको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पूछूं क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अगर मैं आपको पूछूं क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप बोलोगे सर यस इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। वाई? सिंस हेयर द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। देख लो आप यहाँ पर जितने रोज है उतने कॉलम है बेटा, इसका ऑर्डर जो है ये सेम है, दैट इज़ 2/2। 2/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, मतलब ये क्या है बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा, मतलब वो कौन सा मैट्रिक्स रहेगा बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ से भी आप ऐसे भी बोल सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट उसके बाद बड़ी काम की चीज़ बताई बेटा मैंने आपको, ये सारे बच्चों को आना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये है बेटा आपके डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल A11, A22, A33, A44 अप टू AMN। इन जनरल I इज इक्वल टू J। I इज इक्वल टू J मतलब इस टाइप के जो एलिमेंट होते हैं बेटा 22, 33, 44 एंड सो ऑन, इनको बोला जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है आप समझ गए होंगे, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो है बेटा ये क्या रहेंगे? सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे। इन नॉन डायगोनल वी कैन राइट I इज़ नॉट इक्वल टू J। I और J इक्वल नहीं रहेगा, इसका मतलब यहाँ कुछ भी आएगा, ऐसे और नंबर आएंगे 1 2 1 3, तो इसको बोला जाएगा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये कभी नहीं बोलोगे बेटा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन लिया बेटा मैंने आपको, बड़ा काम का डेफिनेशन है, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी लिया है, डायगोनल मैट्रिक्स भी लिया है, वो जस्ट फॉर नॉलेज है बेटा। आपके 12th में आपको सबसे मेन है, अभी आज आपको लर्न करना है स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। सो ये यूनिट मैट्रिक्स क्या है? सो मैं आपको यूनिट मैट्रिक्स का डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे फ्लाइट पे मैंने आपको बताया है यूनिट मैट्रिक्स क्या है। अच्छा, एक बात ये चीज़ है बेटा, यूनिट मैट्रिक्स एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, मैंने सारा लॉजिक चैप्टर कवर किया है। यहाँ कहीं उसका प्लेलिस्ट का आई बटन आएगा, तो आप बेटा लॉजिक चैप्टर भी देखें, लॉजिक चैप्टर भी कंप्लीट करें, देन इसके बाद मैट्रिसेस कंटिन्यू करें। ओके बच्चों, नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट किया है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी और वन। डायगोनल एलिमेंट्स जो है बेटा इसके ये क्या है? 1 है। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। then matrix is called unit matrix and it is denoted by capital I 1001. This is unit matrix of order 2/2. Since the diagonal elements are unity, that is 1, and non-diagonal elements are 0. Non-diagonal elements are 0. Such matrix is called unit matrix. 2 टाइप के यूनिट मैट्रिक्स है बेटा आपके सिलेबस में। ठीक है, एक रहेगा 2/2 और सेकंड रहेगा 3/3। वो भी मैं आपको बता देता हूँ 3/3 का नेचर कैसा रहेगा। 3/3 का नेचर रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको बोला जाता है बेटा यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बड़े काम का मैट्रिक्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, आने वाले वीडियोस में हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये इसको बोला जाएगा बेटा यूनिट मैट्रिक्स।
नेक्स्ट इसके बाद में बड़ा काम का मैट्रिक्स मैंने आपको बताया है, दैट इज़ इसके बाद फिर मैंने आपको अपर ट्रायंगुलर बताया है. यस, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो. बेटा ये वाले एलिमेंट जो रहेंगे ये सारे के सारे ज़ीरो रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं और यहाँ पे ना कुछ नंबर लिख देते 2, 3, 4. ठीक है बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के जो एलिमेंट्स रहेंगे बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, ये ज़ीरो रहेंगे बेटा. इसको बोला जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये नहीं भूलोगे आप. ठीक है, और उसके बाद में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. Therefore, a square matrix in which all the elements above the diagonal elements, इसके ऊपर वाले एलिमेंट बेटा क्या रहेंगे, ज़ीरो रहेंगे, तो उसको बोला जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. साथ ही साथ मैंने आपको आपकी स्लाइड पे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स भी बताया बेटा, उसको मैंने वहाँ मेंशन नहीं किया, तो मैं आपको कर देता हूँ. आप स्लाइड पे देखोगे तो मैंने नीचे ट्रांसपोज भी मेंशन किया है. हो सकता है गड़बड़ में मैंने वो डेफिनेशन कवर ना किया हो, तो मैं यहाँ पर उसको क्लियर कर देता हूँ. बेटा मैं स्लाइड इसीलिए देता हूँ आपको कि आपको प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाए और कुछ पार्ट अगर रह जाए तो आपको स्लाइड पे मिल जाए. अब देखो जो पार्ट स्लाइड पे नहीं हुआ उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है बेटा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज नथिंग बट इफ़ वी इंटरचेंज रो बाय कॉलम्स और कॉलम्स बाय रो वी गेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय AT और A'. ये है बेटा ट्रांसपोज का मीनिंग. ओके, तो आपको करना क्या होता है, रो को कॉलम में, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4. ठीक है, एंड सपोज वी हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, सो जस्ट वी हैव टू इंटरचेंज दिस रो बाय कॉलम एंड अगेन दिस रो बाय कॉलम, सो वी गेट ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स. ओके बच्चों, क्या मिल जाता है आपको, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो. अगर आपको समझ आया हो तो ज़रूर से लाइक करें बेटा और चैनल को सब्सक्राइब करें. सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.